There was a time in my residency days when I had seen a patient came with difficulty in swallowing. अब पता चला कि वो गलती से अपना टूथब्रश ही खा लिया है. Each and every children used to have a chewing gum in his pocket. I used to have a scolding in my home that chewing gum গিলে নিচ্ছিস 7 বছর লাগবে পেটে ডাইজেস্ট হতে. 7 বছর বলেছিল, আমি অনেক সময় 10 বছর শুনেছি. When she came and then we saw her and then we took her to endoscopy room and then we got back her golden ring. 22 कैरेट का रिंग था शायद वो. जाने अनजाने हम लोग कई महीने में कई बहुत सारे अमाउंट पे कॉर्न सिरप हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं. They call gut is the second brain. So it is sometimes it's very difficult to understand the language what we are talking about. So here I am Rohan Sharma, manager operation for Vivekananda Hospital, Durgapur, coming out with a podcast which will decode your thoughts and your questions. And I would like to welcome Dr. Vivek Chaudhary with us. Hello, sir. Thank you. He is a gastroenterologist in our hospital. So we are having some couple of questions to Dr. Vivek Chaudhary. So, sir, there are some questions which I have prepared. Right. But people are having a generic issues, like normal issues, rather than having old text and other things. Right. So, sir, shall we start, sir? Yeah, why not? So, sir, my first question will be: is gluten-free a medical necessity for most, or just a very expensive lifestyle? Right. So that's quite a heavy question to start the podcast with, and I like it. It's not a typical podcast, so you can see I'm kind of stumped and floored by this question. So first of all, I would like to say the word that you have mentioned is gluten. Yes, sir. So most of the people, we are these days, most of the generation millennials and Gen Zs and the people, youngsters, we are all on social media. We follow Instagram, we have YouTube, we follow YouTube shorts and Facebooks and everything. So this is a term that is commonly coming in front of us regarding the reality of gluten-free diet. What is gluten? What should be done? Should everyone consume gluten-free diet and all? So this is a controversy. So to begin with, I would like to say that we have to clear the concept about gluten. What is gluten sensitivity? So gluten basically is a kind of a protein that is found in wheat, barley and rye, those kind of products. And basically unfortunately, the people who are affected by gluten sensitivity, most commonly the most dreaded disease in that category would be celiac disease. So those people are actually asked to stay away from gluten and to strictly abstain from gluten and to not even accidentally consume anything containing gluten. So WHO and all the other organizations and other food industry people, they have been actually given a strict criteria that any food containing more than 20 parts per million of gluten will not be considered as a gluten-free diet. So they strictly have to maintain this criteria that the food accidental ingredient being gluten, that the amount should be less than 20 parts per million in such food. So first of all, these are very expensive things, and till now there have been no studies or there have been no significant data that is indicating that all of us should be consuming gluten-free diet. That should only be given to people with celiac disease and people with non-celiac gluten sensitivity and sensitivity to wheat products. So in my opinion, we should not be scaremongered by influencers and people sitting on Instagram and other social media handles to scare us into consuming gluten-free diet and actually not focusing on basic food hygiene and the basic food that is available to us. So no, the answer is no, not everyone requires gluten-free diet. Okay, so it's very informative for us because people who are searching on people who are on more reliable on Google and influencers, yes. They used to take these things and may get diverted from the actual. Absolutely. So sir, there is one more question. As today's topic is the gut reality. Yes. So we will talk about some more prominent questions also. Yeah, sure. So if appendix is useless, why did nature leave it there as a ticking time bomb? Because whenever we heard about appendix, either we said that the appendix has blast, मतलब ऐसा सुनने में आता है कि appendix blast हो गया, अर्जेंट ऑपरेशन करवाने का पेशेंट कुछ हो जाएगा. तो अगर वो यूजलेस है तो बॉडी में टिकिंग टाइम बम की तरह.
ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सर्जन्स के लिए ज़्यादा वैलिड होगा, बट बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं कोशिश करता हूँ इसको आंसर करने का। तो हाँ, जैसे आपने ये वर्ड बताया ब्लास्ट हो जाना, तो कई बार क्या होता है कि गांव के तरफ से लोग आते हैं, रूरल एरिया से लोग आते हैं, तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि वो लोग 100% साइंटिफिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। वो ऐसे ही बोलेंगे कि पेट में दर्द हुआ था दाएं तरफ नीचे में, एंड देन लोकल किसी डॉक्टर ने या वैद्य ने बताया कि आपका ये अपेंडिक्स है जो फट गया है, या अपेंडिक्स के अंदर पस जम गया है, या इन्फेक्शन हो गया है, तो अपेंडिक्स को जल्दी निकालना है। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव कम अप विद सच हिस्ट्री। कई लोगों को आप पूछेंगे तो उन लोगों का एक ऑपरेशन जरूर होता है, वो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है, बताते हैं अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स ऑपरेशन हो गया, ये वर्ड वो लोग यूज़ करते हैं कि तो कई बार ऐसा होता पता चलता है कि हमें कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, बट देन अनफॉर्चुनेटली उस पेशेंट्स को एक्चुअली हुआ कुछ और था, या फिर मे बी सिर्फ सिंपल केस ऑफ अपेंडिक्स सोच के ऑपरेशन तो कर दिया गया, बट बाद में जब पता चला कि ये कुछ और भी अंडरलाइंग डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होते हैं, या कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे पेट आंत का जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस। सो यस, अपेंडिक्स को हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ते हैं कि इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इवोल्यूशन में ये रह गया है, मे बी कई 100 करोड़ों सालों बाद मे बी अपेंडिक्स भी गायब हो जाएगा। बट आपका क्वेश्चन ये था कि व्हाई डिड नेचर लीव इट? सो आई कैनॉट बी द स्पोक्स पर्सन फॉर नेचर, आई एम जस्ट अ मियर मॉर्टल ह्यूमन, डॉक्टर विवेक, आई कांट बी अ स्पोक्स पर्सन ऑफ नेचर। बट देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई जगह पे ऐसा देखा गया है, कुछ स्टडीज़ भी हैं कुछ दूसरे कंट्रीज़ में, जहाँ पे ऐसा देखा गया है कि कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियाँ उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। जैसे कि इन्फेक्शन होता है क्लोस्ट्रीडियोटिस डिफिकल, एक इन्फेक्शन होता है हमारे हाथों का, जिसमें डायरिया होता है कई बार, स्पेशली एंटीबायोटिक वगैरह खाने के बाद या प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे देखे गए हैं कि कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज होते हैं, कुछ गट कैंसर्स होते हैं। तो ऐसे कई सारे कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जो अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो चुके रहते हैं, जिनके देखा गया है कि उन लोगों में ये बीमारियां होने की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। हालांकि ये कुछ एक स्टडीज़ में कोट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ ग्लोबल ट्रेंड, क्योंकि स्टडीज़ डिपेंड करता है स्टडीज़ कितनी वैलिड थी, कितने सारे सैंपल्स थे उसके, कितने सारे पॉपुलेशन को स्टडी किया गया था। सो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को मुझे ओपन एंडेड छोड़ना पड़ेगा। ना मैं बोल सकता हूँ कि नेचर बेवकूफ़ है कि उसने छोड़ दिया है, ना मैं बोल सकता हूँ कि ऑपोजिट सिनेरियो भी नहीं बोल सकता। तो आई थिंक इस विषय के बारे में हम इस जनरेशन में हम अपेंडिक्स लेके हुए हैं, 100 करोड़ साल बाद क्या होगा हमें पता नहीं। टिल द टाइम वी हैव टू कीप ऑन सर्चिंग कि यस, अपेंडिक्स जब रखा है नेचर ने तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसके लिए कुछ हिडन मीनिंग होगा। इसके लिए और भी स्टडीज़ करना ज़रूरी है। अच्छा, तो स्टिल ये रहस्य रह जा रहा है? रहस्य रह जा रहा है, बिल्कुल। मैंने बताया, जैसे कई स्टडीज़ में बताया गया कि कुछ बीमारियां ज़्यादा देखी जाती है जिन लोगों का अपेंडिक्स हटा दिया जाता है। तो कुछ एक स्टडीज़ के ऊपर कोट करना मेरे लिए मुश्किल होगा। साइंटिफिकली मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे बड़े स्टडीज़ को ही कोट करना पड़ेगा। तो यस, इट्स अ बिट ऑफ अ डाइसी क्वेश्चन विथ अ डाइसी आंसर। Okay, sir. Thank you, sir, for this answer. Sir, we would like to forward to the next question. The very famous word is right now going on, food coma. So, is a food coma a sign of happy stomach or a stomach crash? I would say इसको सिस्टम क्रैश अगर पॉजिटिव तरीके से बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूँ। हैप्पी स्टमक को तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हैप्पी स्टमक इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, इट्स मोर टू डू विद द माइंड देन टू डू विद द स्टमक। बट यस, सिस्टम क्रैश सुनने में बहुत डेंजरस लग रहा है। सिस्टम क्रैश कि पेशेंट या जो जिसने खाना खाया है वो पूरा लेट गया। सो इसको पॉजिटिवली बोलेंगे सिस्टम क्रैश, मतलब इस हिसाब से कि हम जब खाना कंज्यूम करते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट रिच मील्स, तो हमारे बॉडी में अगले आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल कई सारे प्रॉब्लम मतलब इश्यूज होते हैं, जो जैसे हार्मोनल कुछ रिलीजेस होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे कई सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जिससे कि कुछ हार्मोन्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं और कुछ कम हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि और हमारे ब्रेन में कॉर्टेक्स है, हाइपोथैलेमस है, तो वहाँ पे भी कुछ सेंटर्स है जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो रिलैक्स पड़ जाती है। हमें हमारे अंदर वो कुछ एक्टिविटी या जोशो खरोश में कोई एक्टिविटी करना या कुछ भारी काम करना या बहुत ज़्यादा वोकल रहना, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस इज ऑल डाउन टू द इंटरप्ले ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स जो खाना खाने के बाद होता है।
जब ग्लूकोज बढ़ता है फिर इंसुलिन बढ़ता है, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो फिर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं, कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑरेक्सिन एंड अलग अलग चीज़ें होती है जिनके इंटरप्ले की वजह से इंसान काफ़ी हद तक एक कहूँगा अगर लेमन भाषा में तो डाउन हो जाता है। उसे लगता है कि अब मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, मे बी आफ्टर फ्यू आवर्स आई विल बी अगेन बैक। सो आई थिंक इट्स प्रीटी नेचुरल, प्रीटी ऑब्वियस। अगर आपने देखा होगा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच मील या कुछ फैटी मील के बाद ये ज़्यादा होता है। तो बंगाल में जैसे बोलते हैं कि बंगाली में भात खूब, यस। सो ये जस्ट बोलने के लिए नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। सो यस, इट्स अ रियलिटी एंड आई वुड से पॉजिटिवली इट्स अ सिस्टम क्रैश, बट देन दिस ट्रांजिएंट। It's very common. বাঙালিদের ভাত ঘুম নিয়ে খুব একটা চিন্তা করা দরকার। চিন্তা করা দরকার না। এটা বাঙালিরা ভাত খেয়ে quite natural, quite natural। মানে একটা ঘুম দেওয়াটা ঠিকই আছে। ডিপেন্ড করছে আপনি কোন জায়গায় আছেন। কোন জায়গায় আছে, কাজের মধ্যে না হলে। আপনি যদি ড্রাইভার, আপনি ড্রাইভ করছেন, obviously আপনি ঘুমোতে পারবেন না। You have to be responsible for all the passengers that you're taking on your bus, right? So it depends. And true for us doctors also and the healthcare staff also. তাও এই ভিডিওটা যারা দেখবেন, যারা একটু ভাত ঘুম নিয়ে বেশি চিন্তিত, তাদের মাথা থেকে একটা বার্ডেন নামলো। Absolutely. Sir, next question is, can butterflies in the stomach actually cause a clinical digestive flare-up? Okay, so butterflies in the stomach, for people who don't know, this is a term that we have been listening from our school days itself, that अगर मान लीजिए कोई কোনো পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি আমরা বা কোনো ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি বা সাপোজ আজকে কোনো প্রসিজার হতে চলেছে আমার উপরে বা কোনো অপারেশন বা কোনো ইম্পর্টেন্ট জব ইন্টারভিউ, তখন বা ধরুন আমি কোনো অর্গানাইজেশনে কাজ করছি, হঠাৎ করে বসের ফোন চলে এলো যে চলে আসো এখানে দেখা করবে। সো we think whether it is my last day at work, whether it's going to be an increment or whether I'm going to be promoted, या फिर मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। सो एक अजीब सा सेंसेशन आता है हमारे पेट में, दैट इज बेसिकली ये 1900s अर्ली 1900s का टर्म है। ये लिटरेचर में आया था पहले, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, जब लगता है कि जैसे पेट में कुछ अजीब सा सेंसेशन हो रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ मड़ोड़ जैसा हो रहा है, सम काइंड ऑफ अ क्रैम्प्स। There are people who I know, my friends and some of my relatives too, what they do is that it's very common for them to, whenever they encounter any anxious anxiety state, they have to rush to the bathroom twice or thrice, right? कि जाना है मुझे टॉयलेट एंड I have to relieve myself, तभी मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होगा, वरना पेट में दर्द होना। So I think it's very common। And butterflies in the stomach जो ये टर्म है, इसके पीछे अब जाके there is something called gut brain axis। So जैसा पॉडकास्ट के शुरू में आपने कहा कि इट्स द गट इज कॉल्ड अ सेकंड ब्रेन, राइट? सो एक गट ब्रेन एक्सिस है जिसके बारे में पहले कोई रिसर्च था नहीं, लेकिन आजकल रिसर्च बहुत ही और भी हम लोग पा रहे हैं कि हमें मिल रहा है कि द माइक्रोबायोम्स इन आवर गट एंड द न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन, द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द गट, दे आर इनहेरेंटली working in coherence with our brain neurotransmitters and with our brain. So it's called a gut brain axis। किसी भी anxious situation में how we behave or how our gut will behave, that is dependent upon the microbiome of our gut। You will be surprised to know, or maybe most of you know, that it has been postulated in certain research papers and various studies that the gut microbiome, the nature of the gut microbiome will actually decide our personality. They actually decide our personality, how anxious we are or how well we are able to cope up with a flight or fight situation. So butterfly in the stomach causing anxiety or causing other crampy things in the stomach, that's a reality and that is being proven by science. So it's all down to it being the second brain. So that is a very informative thing for us, sir, because it is quite been in trend also, that butterflies in stomach. Yes, and the people are using the term very frequently. Absolutely. So that's why I thought that I should take this question. So when you say people are using this term frequently, so that means people are more anxious these days. Yeah. People are under intense stress these days. You can call it to stress, you can call it to the lifestyle, you can call it to the sense of competition, you can call it to attribute it to peer pressure. तो इंसान में स्ट्रेस बढ़ रहा है and so is the anxiety and so is this response. So sir, let us move forward. So अगर मैं इसको लिटरेचर वाइज बोलूँ, लिटरली बोलूँ, तो बटरफ्लाई का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। बटरफ्लाइज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके बारे में तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, सर, बिकॉज़ एंजाइटी एंड एंग्जाइटी absolutely इंक्रीजिंग डे बाय डे। Absolutely. So sir, right now probiotic yogurts Yes. are in so much craze actually. Like people are buying probiotic yogurts. So what is the biggest lie told by the probiotic yogurt commercial?
Probiotics, that's a good question. Probiotics are flying off the shelf. It's a $1 billion industry, I think, across the world. इंडिया में भी बहुत है. Probiotics actually है क्या? Basically, it's kind of this is an amalgamation of live organisms. जो कहा जाता है कि हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे गट का जो हमारे जो आंतों के अंदर जो माइक्रोबायोटा है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, गुड बैक्टीरिया हम लोग ले रहे हैं, अच्छे बैक्टीरिया हम लोग ले रहे हैं. बैक्टीरिया के अंदर भी सारे दुश्मन नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं. जैसे कुछ फिल्मों में विलन हर वक्त विलन ही नहीं होता, कभी कभार वो एंटी हीरो होता है, राइट. और लास्ट में पता चलता है कि कई बार जो विलन है, जो हम जिसको हिट कर रहे थे, वो कैरेक्टर ही सबसे प्यारा हो गया. तो कई सारे फिल्म आजकल निकले हैं जिसमें क्लाइमेक्स में पता चलता है कि जिसको हम लोग हिट कर रहे थे वही हीरो है एक्चुअली, राइट. I would like to quote Professor Snape from the Harry Potter series. बिल्कुल. लास्ट में जाकर आपको मालूम चलता है कि yes, he was the dear one. Yes, absolutely. और जिन लोगों ने धुरंधर देखी है वो समझ में आ जाएगा. Recent. राइट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि आजकल कोई भी नया मॉलिक्यूल या कोई भी नई दवाइयाँ आती है जब, या प्रोबायोटिक या वेट लॉस ड्रग्स या और भी कुछ है ना, तो कई बार क्या होता है कि कई लोग हैं जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं एंड दे टेंड टू स्पेंड enough on those things without taking a second to research on those things, right? Probiotics are good, it's okay, but probiotics are not the answer. You also have to maintain a good lifestyle, you have to maintain a good food hygiene, you have to have proper informed food choices, maintain food sanitation. Only then probiotic can complement you. But then having said that, these are not meant for everyone, and this might taking a particular course of probiotics may not even affect you positively, even if it does not affect you negatively, but visible कोई ऐसा कई लोग आते हैं जो बताते हैं कि सर ये प्रोबायोटिक्स हमने खाया, बहुत एक्सपेंसिव है, हमने 30 दिन 2 महीने 3 महीने खाए, बट हमें कुछ असर नहीं हुआ. तो असर दिखता वैसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि आपको फीवर हुआ, आपने पैरासीटामोल खा लिया, फीवर कम हो गया. प्रोबायोटिक्स का आपको ऐसे पता चलेगा नहीं. दूसरी बात आपको पता है मिसलीडिंग के बारे में. ऐसे कई सारे स्टडीज हैं, कई सारे दूसरे आउटसाइड इंडिया कुछ स्टडीज है, चाइना में, कोरिया में, जहाँ पे उन लोगों ने कई स्टडीज किया है, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि प्रोबायोटिक कमर्शियल्स काफ़ी मिसलीडिंग होते हैं. मिसलीडिंग से भी ज़्यादा होते हैं कि उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कमी है. जब वो लोग कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं तो आजकल के ज़माने में, इंस्टाग्राम के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में आप देखोगे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि ऑडियंस को इस बारे में जागरूक करते हैं कि जो फूड लेवल है उसको अच्छे से पढ़ना सीखें. जो फ्रंट जो भी हम लोग खरीदते हैं, वो चाहे हेल्थ ड्रिंक हो, बेवरेज हो या कोई प्रोबायोटिक हो, वी ऑल फोकस ऑन कि सामने क्या लिखा हुआ है, बट हम लोग जो कंटेनर है उसको पीछे से मुड़ के पीछे नहीं देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है. तो वी हैव टू एक्चुअली वी हैव टू मेक देम आंसरेबल, द बिग कॉर्पोरेशंस, कि प्रोबायोटिक्स में एग्जैक्टली कौन से स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया उनको पता रहे एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रेन है, कितना उनका पॉपुलेशन है. नॉट ओनली दैट, जब उस प्रोबायोटिक का एक्सपायरी होगा, एट द डेट ऑफ एक्सपायरी कितने वायबल मिलेंगे हमें, ये बहुत जरूरी होता है. ये तो ऐसे पूरा हिडन रहेगा, ये हिडन रहता है. एंड आई थिंक उन लोगों को ये बताना चाहिए, रादर देन ब्लाइंडली फूलिंग अस टू टेक hoard probiotics of different brands in our houses. We have to be very much careful in reviewing those things, and we also should not be taking it like over the counter. We should definitely consult our nearest physician, nearest doctors before consuming probiotics. It's as important as consuming any other drugs. गैस के लिए, एसिडिटी के लिए या दर्द के लिए. जो लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं या दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, आई थिंक उन्हें प्रोबायोटिक्स खाने के पहले भी लोकल फिजिशियन या डॉक्टर से पूछना चाहिए कि ये खा के कितना ही मुझे फायदा होगा और इससे क्या नुकसान हो सकता है, और हमें क्या क्या देखना चाहिए प्रोबायोटिक खरीदने के पहले. सर, ये बात तो आपने सही बोला कि प्रोबायोटिक का जो हमारा कॉमर्शियल्स है, ये हमें सिर्फ उसका एक व्यू ऑफ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉजिटिव है उसको दिखाते हैं, लेकिन एक चीज को हाइड कर जाते हैं, जिससे हमें जानना, ये हमें अपने से जागरूक होकर बड़ा बात है. मतलब उन लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि एक प्रोबायोटिक जब पैक हो रहा है और वो अगर उसका एक्सपायरी है आफ्टर सर्टेन टाइम, तो हमेशा ये देखा जाता है विदेशों में जितनी स्टडीज हुई हैं, तो वो लोग देखते हैं कि एट द डेट ऑफ एक्सपायरी कितने ऑर्गेनिजम्स वायबल रहेंगे तब तक. ऐसा तो नहीं कि प्रोबायोटिक आज पैक हुआ है आप आज ही खा रहे हो सकता है आप 1 महीने बाद खा रहे हो या 2 हफ्ते बाद खा रहे हो उसको. सो 2 हफ्ते बाद अगर मुझे खाना है तो वो प्रोबायोटिक कितना, उसका शेल्फ लाइफ जो है या उसके अंदर जो लाइव ऑर्गेनिजम्स जो उन्होंने पैक किया था वो कितना है. these are information that are very much important for before you purchase a probiotic. So those who are taking probiotic as a fashion, yes, they should be more cautious about it. Yes, absolutely. किसी भी चीज को दुनिया में, चाहे वो खाना हो या पीना हो या हेल्थ रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स रिलेटेड हो या एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो,
फैशन देख के नहीं करना चाहिए। हमेशा ऑलवेज आपको अगर लग रहा है कि ये यूजफुल है आपके बॉडी के लिए तभी आप करिए, डेफिनेटली आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए। जस्ट बिकॉज आपके भतीजे या आपके चाचा या आपके मामा या आपके पिताजी ये खा रहे हैं तो आपको भी खाना है, कोई जरूरी नहीं है। স্যার জেসা যেরকম আপনি বললেন কিছুক্ষণ আগে কি অ্যান্টিবায়োটিক আর ব্যথার ওষুধ হুট করে খেয়ে নেওয়া উইদাউট এনি কনসালটেশন, স্যার এটা ইন্ডিয়ার মতন একটা কান্ট্রিতে যেটা খুব কমন দেখা যায় কি পেটে ব্যথা হচ্ছে হুট করে একটা ফার্মাসিতে চলে গেলাম, দাদা পেটে ব্যথা হচ্ছে ওষুধ দিয়ে দিন, দুটো একটা ওষুধ দিয়ে দিল, পেশেন্ট খেয়ে নিল, হয়তো টেম্পোরারি রিলিফ হয়ে যায়। কিন্তু স্যার যতটা ধরে রাখুন, হয়তো আমি ভুল, কিন্তু সব গ্যাসের ওষুধ সব রকম প্রবলেমের জন্য হয় না। মানে প্রত্যেকটা কোম্পানি অফ গ্যাসের ওষুধ বা প্রত্যেকটা কম্পোজিশন ইজ নট ফর মানে যেটাকে আমরা কাছে, রাইট। তো এইটাতে কি মেসেজ থাকবে আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য? तो ये दिस इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम, ओटीसी ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन लेना, ड्रग्स लेना विदाउट एनी कंसल्टिंग एनी फिजिशियन और एनी डॉक्टर, दैट कैन बी अ फिजिशियन और दैट कैन बी अ स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे रूरल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, या जहाँ पे रूरल प्रैक्टिशनर्स भी नहीं है, जो जिन लोगों का दवाई का दुकान है वही लोग हेल्प कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओके, माने मुझे लगता है कि जहाँ कुछ भी ना हो उससे अच्छा कुछ लोग तो हैं जो कम से कम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ये ड्यूटी बनता है उस फार्मासिस्ट का भी जो ये दवाई दे रहा है ओवर द काउंटर, और उस पेशेंट का भी जो दवाई ले रहा है काउंटर पे, कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अगर आपने एक या दो दवाइयाँ टैबलेट्स अगर सेवन कर लिए, उसके बाद ही आपको एज अर्ली एज पॉसिबल नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज तो ठीक हो गया मैं 5 दिन और खा लेता हूँ, बट आपको पता नहीं है कि आपको जो 5 दिन खा रहे हैं तो आप उस दवाई खाने से आपकी किडनी पे क्या असर पड़ रहा है, कहीं आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतना ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाए जिसको एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं, कि आपको सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाए, आपकी बात करने की कैपेबिलिटी बंद हो जाए, आपका चेहरा फूल जाए, आंखों की सूजन आपको देखने को मिले, जिसको एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। कई लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस बात को लेके कि व्हेन वी आर गोइंग टू एनी पर्सन, बिकॉज डॉक्टर नहीं है तो हमें फार्मासिस्ट से ही दवाई लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप एक लीजिए 2 लीजिए कोई बात नहीं, बट आपको एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़े अगले सुबह किसी नियरेस्ट आपको बड़े शहर पे या गाँव में जहाँ पे डॉक्टर है, आप वहाँ जाइए और फिर उनसे पूछिए कि ये मैंने लिया था, इसको कितना दिन कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ और क्या क्या टेस्ट कराना है हमें। तो मुझे लगता है सिम्टोमेटिकली आप अगर कुछ दवाई ले रहे हो दैट्स ओके, बट you should be visiting your physician or the doctor as early as possible rather than continuing it, क्योंकि इससे तो आराम हो गया, आप जाके क्या करेंगे डॉक्टर के पास। ये हैबिट हो जाना चाहिए। ये बहुत खराब है, क्योंकि कई लोग आते हैं हमारे पास, चूंकि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं, मैं देखता हूं कि कई लोग कई महीनों से कई सालों से दर्द की दवाइयां खाते हैं कि घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, एंड देन वो आ जाते हैं हमारे पास खून की उल्टी लेके, पैखाना काला होता है, पैखाना के साथ खून निकलता है। तो बेसिकली ये अल्सर्स होते हैं जो मतलब विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन लगातार इंसान खाया जा रहा है दवाई, और फिर अंदर में वो जो आते हैं जो पेट है उनके अंदर घाव करवा के वो बैठा हुआ है। तो ये बहुत डेंजरस है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो मुझे लगता है सिम्टोमेटिकली अर्जेंसी है, 1-2 दवाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल फिजिशियन के पास जाइए। इट शुड नॉट बी द हैबिट ऑफ द पीपल, नेवर, डेफिनेटली नॉट बी द हैबिट, डेफिनेटली नॉट बी द हैबिट। Thank you for this answer, sir. Right now, I would like to ask you one more question. Right. If you could ban one artificial sweetener forever, which would it be? आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो कई सारे हैं मार्केट में। बेसिकली आर्टिफिशियल जो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पहला बात दिया क्यों जाता है, एक होता है फ्लेवरिंग के लिए, एक होता है आई थिंक जो जितना भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में, फ्लेवरिंग के लिए तो ठीक है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ठीक है, चीज़ों का उसको मोर पैलेटेबल करने के लिए, ताकि रिपीट वैल्यू हो, बच्चे बूढ़े जवान जो भी है और फिर से खाएं। आई थिंक ये बहुत कॉमन होता है कैंडी वगैरह में, कैंडी में, आई थिंक कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड बेवरेजेस में जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसमें होता है, ठीक है, कुछ सीरियल्स में भी होते हैं ये। तो एक जो नाम मुझे याद आ रहा है जिसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ाई भी किया था काफ़ी साल पहले, आई थिंक फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। जो कॉर्न सिरप है वो बेसिकली शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर के हिसाब से यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव के हिसाब से कई लोग बोलते हैं इसको यूज़ करते हैं, बट इट्स हाईली एडिक्टिव। एंड देखा गया है कि फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारे शरीर में जो इंसुलिन है जो हमारे शुगर को कंट्रोल में रखता है, जो शुगर की मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस तैयार करता है बॉडी में। ओबेसिटी बढ़ाना, ओबेसिटी का जो एक एपिडेमिक छा गया है जो यूएस में इतने दिन से था वेस्टर्न डाइट के वजह से, जो हम लोग इंडिया में वी आर एक्चुअली हगिंग ऑल द वेस्टर्न
food giants and we want to go there and sit and click selfies and post on social media. तो जाने अनजाने हम लोग कई मायने में कई बहुत सारे अमाउंट पे कॉर्न सिरप हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं. अनदर इशू ऑफ रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स बहुत होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा जाता है, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग एंड आई थिंक आई वुड बैन दैट. आई वुड डेफिनेटली बैन दैट. Thank you for this, sir. क्योंकि summers are coming and people will have that. Yes, people will have that. So at least Cola they will be little more cautious yes. about so before hydrate taking. yourself. So if you say that you drink 4 liters of water per day, well and good, very nice. But avoid cold beverages, carbonated drinks. Those have carbonated, those beverages have high fructose corn syrup and they are going to hamper your kidney function. आप जितना भी पानी पी लो. So it's not only about doing the good thing, it's also about avoiding the bad things. Sir, one more question. Like every gastroenterologist used to say to each and every patient who has a history of alcohol that don't take alcohol. Yes. But there is a myth, you can say there is a myth or general talk that एक दिन में 1 पेग या 2 पेग या 30 ml 40 ml से कुछ फर्क नहीं पड़ता. Is it true कि हर दिन अगर हम लोग 1 या 2 पेग ले अगर कंज्यूम करें कोई तो ये उसको माने खराब नहीं करेगा? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. पहले के ज़माने में जब हमारे मतलब 90s अर्ली 2000s या उसके पहले मे बी 15 years अगो तक पहले तक एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि यस इन सर्टेन लेस अमाउंट्स इन मॉडरेट अमाउंट्स कुछ कार्डियोवास्कुलर माने हृदय के रोग के लिए, दिल की बीमारियों के लिए प्रोटेक्टिव है अल्कोहल देना कम अमाउंट में. तो इसको लेके कुछ पेपर्स भी थे, कुछ कई सारे बुक्स में हम लोग पढ़ते थे कि यस जैसे स्मोकिंग इज बैड अल्कोहल, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में अगर ये कम अमाउंट में कोई लेता है तो इट्स ओके, इट्स ठीक है. इसको लेके अगर आप फ्रॉम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे पूछें, आई वुड नॉट सपोर्ट इट. You would not support? I would not support it. The reason being, see, I do not have enough research or enough knowledge about what is the current cardiovascular what are the current cardiovascular guidelines. What would a cardiologist say to a person who is an occasional drinker? I don't know what my cardiology colleagues are saying them कि आप 1 पिक पी लो या 30 ml पी लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. From gastroenterology point of view, I would say that I would say better to avoid it. Better to avoid it. Because मेरा क्वेश्चन का जो मैंने जो ये आंसर किया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. मैंने कई लोगों को देखा है कि once rarely I have met people or patients that maintain the occasional influx, I mean intake of the alcohol. They tend to start taking it in moderate amounts and then they tend to increase and they come to us with catastrophes related to alcoholic liver disease. From my point of view, if you say I don't think it's a good idea, but then I would also request you, if you are to happen to conduct a podcast with our cardiovascular colleagues, this question would be pertinent for them too. I will surely add this it's to the question. Must ask question to medicine and cardiology consultants. I will surely add it too. So let us start with the next question, sir. Right. So leaky gut. Is leaky gut a real diagnosis or a creative term for like what we don't know yet? This podcast is making me nostalgic actually. This podcast is really making me nostalgic because ये सारे क्वेश्चंस मैं जब रेसिडेंसी करता था तो डीएम के वक्त हमारे सर प्रोफेसर्स वगैरह पूछते थे हमें राउंड्स में एंड ड्यूरिंग आवर फाइनल एग्जाम्स एंड ऑल. सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट स्टिल इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लीकी गट एक ऐसा चीज़ है जिसमें अभी भी रिसर्च जारी है. तो लीकी गट, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, लीकी गट इट्स अ कॉन्सेप्ट वेयर इन इट्स सेड दैट वी बिकम व्हाट वी कंज्यूम, राइट. हम लोग जो खाना खाते हैं जो इवेंचुअली डाइजेस्ट होता है थ्रू आवर गट इनटू आवर लिम्फ नोड, इनटू आवर लिम्फेटिक सिस्टम एंड इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम. That is what impacts our whole organs and body systems and everything. So, if the natural barrier to avoiding toxins and bad substances is the gut barrier, right? So when we consume certain things, it is the duty of the gut barrier to actually permit only the good things, to allow it into the lymphatics and the bloodstream, and to discard and not allow bad things. और वो with feces निकल जाएगा. राइट ये एक कॉमन सेंस की बात है. तो लीकी गट वाला कॉन्सेप्ट ऐसे हुआ है कि कई सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं या कई सारे लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस, कुछ आदतें होती हैं
देखा गया है कि वो पर्टिकुलर चीज करने से या वो वैसा उन लोग चीजों का सेवन करने से उन पॉपुलेशंस में कुछ पर्टिकुलर बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो फिर यहाँ से ये बात शुरू हुई कि गट बैरियर में कुछ प्रॉब्लम है। अगर किसी लाइफस्टाइल की वजह से या किसी दवाइयों की वजह से या किसी डिफेक्ट की वजह से अगर हमारे गट बैरियर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल दो देशों में अगर बॉर्डर है और बॉर्डर का फेंसिंग नहीं हुआ है तो कई इन्फिल्ट्रेटर्स इधर से उधर जा सकते हैं, राइट। सो इसी तरीके का बात है कि अगर वो बॉर्डर ठीक नहीं है तो कई सारे अनवांटेड चीजें जो हमारे बॉडी को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं वो उस लीकी गट के थ्रू लीक हो जाती है अंदर में, राइट। सो बात यह है कि लीकी गट इज इंपॉर्टेंट, इट इज रेलिवेंट, देयर इज massive ongoing research regarding leaky gut and how to correct it. There are certain advanced endoscopical and microscopical methods जिससे कि leaky gut को मेजर भी किया जा सकता है, ठीक है। confocal endomicroscopy एक बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं जो रिसर्च में लोग यूज़ करते हैं to measure the amount of leakiness in the gut. तो I would say leaky gut is important, leaky gut is real, and with time as years pass by we will definitely get a more solid answer to this concept and to how to correct this. স্যার ছোটবেলা থেকেই খাওয়ার সময় মা বলতো এই খেতে খেতে জল খাবে না, এইটা কি কোনো কারণে বলতো না শুধু চাইতো যেন খাবারটা পুরো কমপ্লিট করে জল খেয়ে নিলে তো পেটটা ভরে যাবে, খাবারটা পুরো খাবে না? তো খাবার খেতে খেতে খাবার মাঝে মানে টেকিং sips of water during the interval of having food, does it actually dilute the stomach acid? আমার মাও বলতো এটাই, ঠিক আছে, মানে it's a very common thing, so the first part of the question, first of all there is a cultural angle to it. फैमिली में क्या ट्रेंड है, किस कल्चर में आप हो। कई फैमिलीज में ऐसा है कि खाना खाने के दौरान पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद ही पानी पीना है। कई जगह पे ऐसा है कि सिप्स लो, खाना खाओ एंड देन पानी पियो। कई जगह पे है कि आप खाना खा लो, आधे घंटे बाद पानी पियो। कई जगह पे है कि आपका जो मर्जी है वो करो, है ना। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग। आई डोंट थिंक देयर इज एनी साइंटिफिक बेसिस टू stop someone from drinking water during meals, or I don't think, in my limited knowledge, I would say the gut is called the second brain. Gut has taken care of itself since millions of years. The stomach and the gut will continue to take its care in future for millions of years. We don't need to worry about whether or not we are consuming food with water with food or after meals. And regarding dilution of this thing, so that reminds me of to consume my daily quota of water. Common sense wise, अगर आपका एसिड अंदर में पेट में है, आप पानी पी रहे हो, इट्स अ कॉमन सेंस कि उसका स्टमक का पीएच बढ़ना चाहिए। इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स केमिस्ट्री। आप पानी पियोगे, एसिड डाइल्यूट होगा, ये कॉमन सेंस है, बिल्कुल। ये तो केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री है ये। बट देन इट्स नॉट अ बिग डील because the stomach knows how to take care of itself. It will ramp up acid production. It has to secrete enough amount of acid to digest the meal. आप पानी पियो नहीं पियो, depending upon what is the food content, whether liquid or semi solid, or what is carbohydrate rich है या कुछ है, जो भी हमारे meals जो स्टमक में डाइजेस्ट होना है वो आप पानी पियो या ना पियो, स्टमक एडजस्ट कर देगा पीएच को एसिड सिक्रीशन बढ़ा करके। सो आपने पानी पी लिया और स्टमक एसिड डाइल्यूट हो गया तो ये परमानेंट बात नहीं है, ये बस ट्रांजिएंट हो सकता है। बिकॉज डाइजेशन इज नॉट अ 1 सेकेंड वाला एक स्नैपशॉट प्रोसेस, ये कोई स्नैपशॉट नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है दैट लास्ट फॉर आवर्स। सो वी नीड नॉट वरी। So there is nothing to worry about taking sips during meal. Absolutely. So sir, being a GI doctor, yes, so I have talked about you some generic issues also. So right now I would like to ask you one question. Is the 5-second rule for dropped food a GI doctor's worst nightmare? 5-second rule? Yeah. 5-second rule, you mean I mean you drop a food and that thing. Yeah. You drop a food and then acha. So 5-second rule, again, it's like one of the questions earlier you answered regarding butterflies in the stomach. Yeah. ठीक है, तो उस तरीके का ये है कि ये बहुत ही कॉमन है कि हाँ आपके हाथ से कुछ अगर गिर गया, जितना जल्दी हो सके उठा लो उसको एंड वो फिर खा सकते हो, राइट। तो ये थोड़ा कार्टूनिश हो गया, बेसिकली कार्टूनिश। आई वुड से इट्स काइंड ऑफ अ कार्टूनिश। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये,
इनफैक्ट कई एडल्ट्स भी प्रैक्टिस करते होंगे, मैं भी शायद प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे हाथ से अगर कुछ गिर गया तो जल्दी उठाना है, कुछ नहीं होगा, जल्दी से धो के खा लो। तो ये एक मिथ है, 5 सेकंड का रूल कुछ नहीं होता है। अच्छा, अगर ट्रांसमिट होना है बैक्टीरिया या वायरस या कुछ भी, वो नैनो सेकंड में भी हो सकता है। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 4.5 सेकंड में उठा लिया आप उसको खा सकते हो। आधे सेकंड में भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप ये टॉपिक उठा ही रहे तो मैं बता सकता हूँ इसके लिए भी कुछ स्टडीज हैं, 2-3 स्टडीज हैं जहाँ पे देखा गया है कि 1 सेकंड, हाफ सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, अलग अलग सेकंड के बाद उठाया गया है। तो ऐसा देखा गया है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरियल या कॉन्टेमिनेशन लोड ज्यादा होगा जितने देर बाद आप उठाओगे, बट ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड के लिए गिर गया तो आप दैट इज फिट फॉर यू टू कंज्यूम। सो इट्स अ मिथ। तो गिरा हुआ खाने को नहीं खाना, मत खाओ भाई, मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, कोई जरूरी नहीं है। 5 सेकंड रूल को मत करो, वरना 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच सकते हो मे बी। ठीक है, तो ये 5 सेकंड में खाना उठा लेने के बाद 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचने से अच्छा वो खाना छोड़ दो। बिल्कुल सर, from childhood each and every children used to have a chewing gum in his pocket. It was a very chewing gum. Right. So you can say, I can remember not a still I consume chewing gum, but the thing is that I used to have a scolding in my home that chewing gum গিলে নিচ্ছিস, 7 বছর লাগবে পেটে ডাইজেস্ট হতে। এটা মিথ না অ্যাকচুয়াল জিনিস না এটা প্যারেন্টহুড? লাইক 7 বছর বলেছি তো, আমি অনেক সময় 10 বছর শুনেছি। ডিপেন্ডস অন विच पार्ट ऑफ द विच फैमिली यू आर ग्रोइंग अप इन, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। सो अलग अलग जगह शायद अलग टाइम लाइन होगा, 7 years, 5 years, 6 years। जैसे दैट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ इफ आई एम आई वाज कंज्यूमिंग वाटरमेलन, अगर मैं तरबूज खा रहा था पेट पे पेड़ हो जाएगा, तो वो जो अगर उसका सीड अगर चला गया तो पेड़ हो जाएगा। कई बार मुझे डर लगता था कि ये शायद पेड़ उग रहा है, पेड़ अंदर से आ रहा है और 2-3 दिन में पेड़ निकल जाएगा मुंह के अंदर से। ठीक है, तो बहुत डरावना वो माहौल था। और थैंक यू फॉर मेकिंग मी नॉस्टैल्जिक अबाउट, फर्स्ट फॉर मेकिंग मी नॉस्टैल्जिक अबाउट माय रेसिडेंसी डेज, एंड नाउ मेकिंग मी नॉस्टैल्जिक बिकॉज ऑफ माय चाइल्डहुड। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर। सो द थिंग इज, अगर स्ट्रेट मुझे आंसर देना है, इट्स अ मिथ, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर च्युइंगम चबा के उसको निकलते रहो। नहीं है, च्युइंगम चबाओ, फेंक दो। ठीक है, च्युइंगम चबाना अच्छी बात है कि नहीं, ये बात का बात है, ये किसी और पॉडकास्ट में करेंगे। बट बिल्कुल ये मिथ है कि 7 साल रहेगा। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आते हैं आजकल इंटरनेट पे, तो आप गूगल कर सकते हो। So it's a parenthood kind of. Yes. So let us move for the next question, sir. We are near about completing our question scenarios. Right. So there are very few questions left. Right. So sir, what is the most unusual object you have ever discovered while performing endoscopy as well as colonoscopy? अनयूजुअल ऑब्जेक्ट, देखो अनयूजुअल वर्ड तभी मैं यूज करूंगा जब मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जनरली मेरे पेशेंट्स जो भी आते हैं उन लोग बता के आते हैं कि उन लोगों ने एक्सीडेंटली कुछ खा लिया है, निकल लिया है। फॉर एग्जांपल एक मुझे किस्सा याद है, एक मैरिड फीमेल, शी हैड अ फाइट विथ हर हस्बैंड, सो शी कंज्यूम्ड, इंजेस्टेड हर गोल्ड रिंग, वेडिंग रिंग, राइट। सो झगड़ा किया, वो खा लिया। She was unable to digest the fight, so she tried to digest the wedding. The ring. And when she came, and then we saw her, and then we took her to endoscopy room, and then we got back her this thing, golden ring, 22 कैरेट का रिंग था शायद वो। Anyways, तो अनयूजुअल मैं नहीं बोलूँगा, हाँ अनयूजुअल इस तरीके से कि मुझे पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है, बट हाँ यहाँ पे तो मिला। अब जैसे अनयूजुअल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड बेजोआर्स। तो कई सारे साइकेट्रिक इलनेसेस वाले या कुछ साइकोलॉजिकली कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन लोगों को आदत होता है कुछ जैसे हेयर स्टैंड्स खाने का, तो उन लोगों को पेट दर्द हुआ, एंडोस्कोपी किया तो हमें इतने बार एक बॉल ऑफ हेयर मिला पेट में। मुझे अभी तक मिला नहीं, बट मैंने देखा है कई जगह पे, तो एक अनयूजुअल चीज हुआ। मेरे केस में मैं बोल सकता हूँ वेडिंग रिंग मुझे मिला था, बट मुझे पता था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। कोलोनोस्कोपी करते वक्त हमें सेफ्टी पिन वगैरह निकालना पड़ा है, वो खा लिया था, एंड देन दैट कुड नॉट बी टेकन आउट एंडोस्कोपिकली, सो दैट सेफ्टी पिन एक्चुअली धीरे-धीरे करके नीचे गया, एंड देन पेशेंट केम टू अस एंड वी हैड टू टेक आउट द It can lead to some serious complications. परफोरेशन। सेफ्टी पिन अगर ओपन अवस्था में, अगर ओपन कंडीशन में रहा तो वो परफोरेट कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वर एक्सीडेंटल इंजेक्शन। अनयूजुअल मैं नहीं बोलूंगा, बट यस, देयर वाज अ टाइम इन माय रेसिडेंसी डेज व्हेन आई हैड सीन अ पेशेंट
केम विथ डिफिकल्टी इन swallowing, पता चला कि वो गलती से अपना टूथब्रश ही खा लिया है। तो उसके उसके जो इसोफेगस, जो फूड पाइप है, उस पर इतना बड़ा एक पर्पल कलर का एक टूथब्रश था। तो वो दैट इज ये सब चीज तो सर मिलते रहेंगे आपको इन फ्यूचर भी, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश एज लॉन्ग एज लेट अस प्रे कि ऐसा ना हो, और अगर वो भी तो हम लोग निकाल पाएंगे। हाँ, निकाल पाए, सो दैट वी कैन सेंड द पेशेंट होम वेरी सेफली। बिल्कुल सर, अभी इन रिसेंट टाइम, एज बिकॉज medicine is getting modernized, everything is getting modernized, and there are so many technologies are coming. Capsule endoscopy, I would like to ask. Capsule, कुछ दिन पहले शुरू किया हमारे हॉस्पिटल में। So in Vivekananda Hospital we are doing capsule endoscopy. Sir, capsule endoscopy एक छोटा सा चीज, वो 30 feet the gut length, if I am not wrong. Yes, 30 feet is the gut length. Yes, yes. So it is mostly वो अगर जा रहा है पेट में से, उसका बैटरी हाफ रास्ते में खत्म नहीं हो जाता है सर? तो देखिए क्या होता है कि अगर आप एडल्ट, एक मिथ है, टेक्नोलॉजी ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, कैप्सूल्स जो पिल्स होता है ना, दैट्स लाइक अ कैप्सूल, दैट्स अ पिल, उसके अंदर कैमरा रहता है, सेंसर्स रहते हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ना, उसमें भी रिफाइनमेंट हो रही है। तो क्या होता है कि उसको वो फुल चार्ज कंडीशन में उसको भेजा जाता है, उसको खिलाया जाता है, पेशेंट को बुलाया जाता है कि आप खा लो, निगल लो, एंड देन ओवर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, 7 to 8 hours, that is the time it takes to, डिपेंडिंग ऑन हर आदमी का, हर इंसान का ट्रांजिट टाइम अलग होता है। किसी का ट्रांजिट टाइम बहुत जल्दी होता है। हमारा स्टार्टिंग, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री जो कैप्सूल स्टमक से डुओडेनम में जाता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डुओडेनल बल्ब, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम। एंड जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं टर्मिनल आइलियम। वहां से वो फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इनटू सीकम, राइट? सो बिटवीन डुओडेनल बल्ब एंड टर्मिनल आइलियम, वो ट्रांजिट टाइम अलग अलग लोगों का अलग होता है। किसी का 6 से 7 घंटा, किसी का 10 से 12 घंटा। इट डिपेंड्स व्हाट इज ट्रांजिट टाइम, कोई ऑब्स्ट्रक्शन था कि नहीं, कोई नैरोइंग था कि नहीं, जिसकी वजह से वो कैप्सूल जा पाया कि नहीं ठीक से, राइट? तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इन आवर प्रैक्टिस जो हम कैप्सूल करते हैं, जो भी कैप्सूल का जो फुल चार्ज में जो उसका लाइफ रहता है, इट इज इनफ टू कवर द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। ओके, कई बार क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन, जो सीकम है, जो एसेंडिंग कोलोन है, जो ट्रांसवर्स कोलोन है, इतना भी कवर हो जाता है। तो आई डोंट थिंक कैप्सूल का बैटरी लाइफ के लिए हमें कुछ चिंता करने की जरूरत है। ये क्योंकि कैप्सूल कब करना है हमको, जब हम लोग अपर जी एंडोस्कोपी से हम लोग पेट लगभग डुओडेनम का सेकंड पार्ट तक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू का पार्ट है, वहां तक हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग कोलोनोस्कोपी करके सीकम तक या फिर टर्मिनल 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ आइलियम देख पा रहे हैं। तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये अगर हमें लगता है कि यहाँ से कोई ब्लड लॉस हो रहा है, या एनीमिया का ये कॉज हो सकता है, या पेन एब्डोमेन का ये कॉज हो सकता है, तो हम कैप्सूल एंडोस्कोपी करने के पहले सीटी स्कैन कर लेते हैं, देखने के लिए कि अंदर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, वरना कैप्सूल अटक सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग कैप्सूल करते हैं, बेसिकली टू नो अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्थ। तो स्मॉल जो गट होता है, डुओडेनम, जेजुनो, आइलियम, द बैटरी लाइफ इज इनफ, जो अगले 8 से 10 घंटे तक हमें बता सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम है। तो आई डोंट थिंक वी शुड वरी अबाउट इट। इसके बारे में if people are getting worried about, we should be more worried कि कैप्सूल कहीं अटक ना जाए पेट में। इसके लिए हमें काउंसलिंग करना पड़ता है पेशेंट रिलेटिव्स को, पेशेंट को, कि 1 to 2% चांसेस होता है कि कैप्सूल अटक सकता है पेट में। तब हमें कुछ और चीजें करनी पड़ सकती है। ऐसे हो सकता है कि सर्जरी करके निकालना पड़ सकता है कैप्सूल को, राइट? तो ऐसा बात है कि हमें इससे पहले सीटी स्कैन करके देख लेना पड़ता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट? फिर भी देखा गया है कि कई लोगों में 1 to 2% केसेस में नॉर्मल सीटी स्कैन के बावजूद भी कई लोगों में अटक जाता है कैप्सूल। So we should be careful enough to counsel the patient's relatives and then perform it. Okay, sir. Right. ये बहुत informative रहा, and we are doing a successful capsule endoscopy in our hospital. We have done many cases. Yes. Many cases also. So, sir, our last 3 questions. Right. So, what is the myth behind avoiding colonoscopy by patients? So, तो कई सारे हैं जो आप generally जो आपको सुनने में मिलता है। देखिए, मिथ मैं बोलूँगा, मिथ से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि एक डर रहता है कि दर्द होगा बहुत, ठीक है, एक बड़ा सर्जरी, कई लोग सोचते हैं बड़ा सर्जरी है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, कोलोनोस्कोपी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, जहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा कैमरा, एक जो है वो हम लोग एक जो रेक्टम है, इनल कैनल के थ्रू हम लोग इंटायर लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ हद तक स्मॉल इंटेस्टाइन को, टर्मिनल आइलियम को देखने के लिए यूज करते हैं। एंड इट शुड ओनली बी डन इफ इंडिकेटेड, स्ट्रांगली इंडिकेटेड। ऐसा नहीं है कि वी जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट। वी शुड बी एज डॉक्टर्स वेरी केयरफुल
वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमें अगर किसी कोलोनोस्कोपी करवाना है तो उसका इंडिकेशन स्ट्रांग हो, जो मैं ये हमेशा फॉलो करता हूँ। ब्लीडिंग हो सकता है, किसी को अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है स्टूल में, किसी को मैरून कलर का स्टूल आ रहा है, किसी को ब्लैक कलर का स्टूल हो रहा है, किसी का वेट लॉस हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट के ऊपर उसे लग रहा है स्वेलिंग है, कुछ लंप है। कई बार सीटी स्कैन करवा के आते हैं, कई बार यूएसजी करवा के आते हैं, कई बार कोई सीटी वगैरह नहीं रहता है, बट वी नो दैट वी हैव टू गेट अ कोलोनोस्कोपी डन। विदेशों में स्पेशली अमेरिका वगैरह में 45-50 साल के बाद स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी होते हैं, जहां पे दिखाया जाता है कि हमें कुछ पॉलिप या कुछ कैंसरस, कुछ प्री मैलिग्नेंट लीशंस है कि नहीं, वो देखने के लिए। तो इंडिया में अभी तक कोई गाइडेंस आया नहीं है कि हमें 45 से 50 के बाद हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में, कि हमें स्क्रीनिंग करना चाहिए हर एडल्ट के लिए ओवर द एज ऑफ 45 और 50 इयर्स। बट यस, इट शुड ओनली बी डन इफ स्ट्रांगली इंडिकेटेड। एंड यस, इसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट इसलिए है क्योंकि हम लोग हवा के प्रेशर से कोलोनोस्कोपी करते हैं, बिकॉज वो जो कोलोन है एक तरीके का पाइप है जिसको हवा से फुलाना पड़ता है। नाउ ये करने के लिए पेशेंट को डिस्कम्फर्ट तो होगा। अब वी गिव द पेशेंट्स चॉइस, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो वो बोल सकते हैं कि हमें सिडेशन में कराना है, तो उनको हम एनेस्थेसिया के पास ले जाके, डॉक्टर्स के पास ले जाके उनको एनाल्जेसिक्स और थोड़ा सा सिडेशन दे देते हैं, जिससे कि उनको जो तकलीफ है वो ज्यादा कंफर्ट हो। तो कई सेंटर्स पे रूटीनली यूज होता है, कई सेंटर्स पे ये पेशेंट के ऊपर अगर सिडेशन चाहते हैं तो हम सिडेशन देते हैं। तो आई थिंक मिथ से ज्यादा एक डर है, बट आई थिंक अगर ये क्रेडिबल है, अगर ये बिल्कुल सही इंडिकेशन के लिए दिया गया है, तो अ टाइमली कोलोनोस्कोपी कैन सेव लाइव्स। It can definitely save lives. So rather than thinking in own way, you should consult a doctor. Absolutely. Sir, these are my fear factors. So what you can help me about? Absolutely. Sir, our last question of the talk show, the gut reality. Yes. The very important thing, ERCP. Yes. What, when, why, and why not? Okay, so ERCP is a big topic. Maybe we would require another podcast for this. So ERCP is basically एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। एंडोस्कोप के माध्यम से करते हैं इसलिए एंडोस्कोप बोलते हैं इसको। उस एंडोस्कोप का नाम है डुओडेनोस्कोप। रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है कि हम लोग पेट के अंदर से जाके, हम लोग पेट के एक पर्टिकुलर जगह पे जाके पित्त नली और अग्नाशय या पैनक्रेटिक के नली के पास हम लोग एक कैमरा ले जाते हैं और वहां से हम लोग कुछ डाई पुश करते हैं, जिससे हम लोग देखते हैं कि क्या हालत है पित्त नली या अग्नाशय की नली का। अगर कुछ पत्थर है या अगर कुछ जगह कुछ संकरा हो गया है, नैरोइंग हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो हमें वो देखना पड़ता है। तो ERCP अगेन इट्स नॉट एन इजी प्रोसीजर, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसीजर, इट टेक्स इयर्स ऑफ लर्निंग एंड इवन द एक्सपीरियंस्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग ERCP दे लर्न विद एवरी केस। सो ERCP अगर कहीं पे पत्थर है, अगर कोई संकरा है, नैरो हो गया है रास्ता पित्त नली का या अग्नाशय नली का, तो हम लोग पाइप एक स्टेंट डाल के वहां पे हम लोग उस प्रॉब्लम का निवारण कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा है कि कुछ वहाँ पे ट्यूमर टाइप का कुछ है या कैंसरस कुछ है, तो हम लोग वहाँ से कुछ ब्रश साइटोलॉजी भी ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग प्रमाण कर सकते हैं कि ये कैंसरस है। तो ERCP और कई बार क्या होता है पेशेंट हमारे पास आते हैं कोलेंजाइटिस लेके। तो कोलेंजाइटिस जो एक तरीके का जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है किसी किसी पेशेंट्स के लिए, जहाँ पे पेशेंट्स बहुत हाई जॉन्डिस लेके आते हैं, आंखों का जो रंग है वो बिल्कुल सरसों तेल जैसा पीला हो जाता है, पेशाब पीला होता है, बुखार का एक कंप्लेन होता है लोगों का, उसके बाद पेट दर्द हो सकता है, उल्टियां हो सकती है। तो देखा जाता है कि ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि जो पित्त नली है, जिसके अंदर पित्ती हमारे लीवर से निकल के हमारे हाथों तक जाती है, वो पित्त नली में कुछ ब्लॉकेड है। वो ब्लॉक हो सकता है पत्थर की वजह से, या वो जगह नैरो हो गया, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में स्ट्रिक्चर बोल सकते हैं। तो एक पेशेंट को स्टेबल करके अगर हम ERCP करके वहाँ पे एक प्लास्टिक या मेटल स्टेंट डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन अगर लोग डाल सकते हैं, पेशेंट को हम लोग मौत के मुंह से निकाल के नई जिंदगी दे सकते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हमने भी किए हमारे हॉस्पिटल में। एंड ERCP इज अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसेस। बट हाँ, चूंकि ERCP एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके का एंडोस्कोपिक थेरेपी है, तो इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर एक पेशेंट रिलेटिव को इसके कुछ रिस्क भी बताएं, ताकि उन्हें इस बात का अनुमान रहे, अंदेशा रहे कि यस, ऑपरेशन करने के बाद और क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए उनको अलर्ट रहना पड़ेगा और हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ERCP इन वन फ्रेज अगर मैं कहना चाहूँ तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। पित्त नली की पथरी, पित्त नली का संकरा होना, कुछ कैंसरस जहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर है, उनको केमोथेरेपी नहीं दिया जा पा रहा है क्योंकि उनकी जॉन्डिस बहुत हाई है, तो हम लोग स्टेंट करके उनका जो पित्ती का जो फ्लो है वो रिस्टोर कर सकते हैं, जॉन्डिस कम कर सकते हैं, ताकि उनको केमोथेरेपी मिले और नए जीवन की तरफ वो लोग आगे बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगली बात जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि
ERCP भी जैसे कोलोनोस्कोपी के लिए मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के बिना बिल्कुल नहीं करना है, इंडिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी करना है वरना नहीं करना है। ये एज अ डॉक्टर मैं बता रहा हूँ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टू प्रैक्टिस दिस। So we are going to conclude our podcast today, the gut reality. So I would like to thank Dr. Vivek Chaudhary once again for giving us his valuable time. So I hope we were able to come up with some general questions which were very required for the current scenarios in going on, and people will like it. And not only that, I am very pleased and I'm very feeling good, honored that I got the opportunity to talk with Dr. Vivek Chaudhary and got so acknowledged about so many things. Likewise, because one thing that I liked about this podcast was a few questions where absolutely that would I think hit home with the millennials and Gen Zs who are on the internet. That some of the things that are going around on the internet, and there are so many myths, and I think our podcast probably did some good for you, for the listeners. So let's hope for the good thing and let's hope for the best even. And if anyone wants one from your side that want to consult Dr. Vivek Chaudhary, you will get that appointment number in the video link also, and you will be able to find out that when and how to seek help from Dr. Vivek Chaudhary. Thanks again, sir. Yeah, thank you. Thank you, everyone.